Hello, students. Welcome to the class 8 in the history class. Lesson number 2, the expansion of British power. Myself, Mrs. Rama Babri, I'll be teaching you history, the expansion of the British power. The subtopic which we are going to pick up today is a very interesting one. Very interesting one. The claim of paramountcy by East India Company. Fine? Okay. The points which you have to focus more is about the claim of paramountcy policy and Lord Hastings. Aggressive policy of territorial expansion and then the challenges during the British expansion. Now, three main points. A claim of paramountcy policy, this will be discussing about the meaning of paramountcy policy, and we'll be discussing about that who the Lord Hastings was. Fine, we will be discussing about Lord Hastings and the claim of paramountcy policy, its meaning. Okay, and the next point, the focus point will be the aggressive policy of territorial expansion by the British Empire or the East India Company or the East India Company. Fine, that how fastly, how quickly they were expanding their territories. Then the kind of challenges they faced, the Britishers they faced during the British expansion. Fine? Okay. Now we will be coming to the main topic, the policy of paramountcy, the Lord Hastings. Fine? Lord Hastings, he was the Governor General from 1813 to 1823. He was a Governor General of India. Lord Hastings, or Lord Mayo also we call him, he served as a Governor General of India from 1813 to 1823, a long tenure of 10 years. His tenure is well known for the policy of intervention and war. Gorkha War and Third Anglo War occurred during his tenure. There is one very quite similar name, Warren Hastings and Lord Hastings. Warren Hastings and Lord Hastings. Fine, don't get confused in these two personalities. The same person, are they same person? Not at all, they are not the same person. Warren Hastings became the first Governor General of Bengal from 1772 to 1785. He was the Governor General, first Governor General of Bengal. Fine. Whereas the Lord Hastings, he became the Governor General of British India in 1813. In 1813. Is it clear that who was Lord Hastings? Okay. A new policy of paramountcy was initiated by Lord Hastings. लॉर्ड हेस्टिंग ने ये पैरामाउंटेसी एक पॉलिसी थी, ठीक है, जैसे हमने सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा वैसे एक पैरामाउंटेसी एक पॉलिसी थी जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे. कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे. फाइन. फ्रॉम 19th century the company persuaded an aggressive policy. एक एग्रेसिव पॉलिसी थी ये, और जो गवर्नर जनरल ने इनिशिएट किया, वॉरेन हेस्टिंग ने, ये न्यू पॉलिसी लाने के लिए पैरामाउंटेसी को. अब ये एग्जैक्टली था क्या? कंपनी क्लेम्ड
that its authority was paramount or supreme. Paramount का मतलब सबसे ज़्यादा सुपीरियर. कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम. जो हमारी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है. ठीक है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम का मतलब हमारे उनके आसपास कौन थे? हम ही लोग थे. सुप्रीम सबसे बड़े हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं, उनके पास मिलिट्री पावर है, हर तरह से वो बेटर हैं. बेटर किससे हैं? मीन्स कंपनीज पावर वॉज मोर पावरफुल देन इंडियन स्टेट्स. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये इन्होंने डिक्लेरेशन इस टाइप की क्यों करी कि पैरामाउंटेसी, policy of paramountcy means we people are superior than you Indians, so whatever we are telling, we are commanding, you have to listen to it. और इस तरह की पॉलिसी क्या था कि उनको अपना सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड. टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अपने इलाके को बढ़ाना था जहाँ से वो ट्रेडिंग कर सकते थे. फाइन. सो दिस वॉज देयर फोकस पॉइंट. एंड दे बट व्हाट यू कॉल सब्सिडरी एयरलाइंस. कभी वो मिलिट्री कॉन्फेडरेशन करते थे, कभी पॉलिसी बना दी कि भाई बिना लड़ाई झगड़े के भी जो है वो दूसरों की टेरिटरी को अपने कब्ज़े में ले लें, उनको एनेक्स कर लें. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अपना जो मतलब साधना था उनको. ठीक है, उनका मतलब क्या था? सिर्फ उनका एक ही मतलब था कि हमारे अंडर ट्रेडिंग हो और जितने भी किंगडम के रूलर्स हैं वो हमारे हाथ में पपेट्स की तरह काम करें. ठीक है. टू जस्टिफाई द एनेक्सिंग एनी इंडियन किंगडम, किसी भी किंगडम को, किसी भी रूलर को अपने अंडर लेने के लिए उन्होंने इस तरह की नई नई पॉलिसीज़ बनाई और उसको जस्टिफाई करा. अब यहाँ कैसे जस्टिफाई किया कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी के अंतर्गत ये वो बताना चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर तरह से इंडियन रूलर से सुपर है, सुप्रीम है, बेस्ट है. ठीक है. और उनके पास आर्मी पावर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिंग जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं. ठीक है. एंड दे कैन मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो जो है अपने माल को कैसे बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं. सी वॉयजेस के जितने सोर्सेज हैं बहुत बढ़िया है. तो हर तरह से नेवल पावर है उनके पास, तो हर तरह से वो सुप्रीम है, पैरामाउंट है. ठीक है. तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हम तुमसे बेटर हैं और तुम्हारे इलाके को हम एनेक्स कर सकते हैं, वहाँ पे रूल कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं. फाइन. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट, इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम. किसी भी इंडियन किंगडम को वो अपने अंडर ले सकते हैं. किस पॉलिसी क्या थी उनकी? पैरामाउंटेसी का क्या मतलब हुआ? वॉरेन हेस्टिंग ने इसको इनिशिएट करा, इसको इंट्रोड्यूस करा. क्यों इंट्रोड्यूस करा? एक एग्रेसिव पॉलिसी थी, वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस पॉलिसी की जल्दी जल्दी सारी टेरिटरीज अपने अंडर कर लो. बंगाल को अपने अंडर कर लिया, कैप्चर करा. मैसूर से लड़ाई खूब ज़बरदस्त वॉर हुई. ठीक है. तीन मतलब कि बहुत भयंकर वॉर हुई उनके साथ, एंग्लो मैसूर वॉर. फिर मराठास के साथ हुई, बहुत ज़बरदस्त टक्कर हुई, खूब वॉर हुआ. किस लिए हुआ? सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन. सब्सिडरी अलायंस भी एक तरीका था बिना वॉर के जो है सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत वो लोग रूलर्स के जो पावर है, मिलिट्री पावर अपने हाथ में ले लेते थे और उनको एक पपेट की तरह बैठा देते थे कि यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए और हमें दीजिए. आर्मी हम मेंटेन करेंगे, पैसा आप दीजिए. अब एक नया तरीका, एक और पॉलिसी निकाल दी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी. ठीक है. इसके पैरामाउंटेसी का यहाँ मतलब है कि दैट वी पीपल आर सुप्रीम, we people are better than
इंडियन रूलर्स, सो लिसन टू अस। जस्टिफाई करा उन्होंने इस बात को लेके। अब आता है, आप स्क्रीन पे देखिए, एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। एग्रेसिव मतलब कि बहुत फुल फोर्स के साथ, रुकना नहीं है, बिल्कुल फुल एग्रेसिव, पूरे फोर्स के साथ, पूरी पावर के साथ, हर मतलब कि साम दाम दंड भेद सब कुछ को उसको उन्होंने अप्लाई करा। किस लिए? कि वो अपने इलाके को बढ़ा सके। फाइन। तो इसमें क्या था, फ्रॉम 19th सेंचुरी द कंपनी persuade for an aggressive expansion Bengal, Mysore and Maratha. The period of 1805 to 1848 saw a rapid expansion of British power. अब आप देखेंगे पीरियड फ्रॉम 1805 टू 1848, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री ने देखा, इंडियन हिस्ट्री ने देखा कि एक रैपिड एक्सपेंशन जो है, बहुत तेजी से ब्रिटिश पावर हिंदुस्तान के अंदर पैर जमा रहा था। साउथ ईस्ट एशिया में अपना पैर जमाया, अपना झंडा गाड़ा। द ब्रिटिश कॉन्कर्ड जावा, देखो हिंदुस्तान के आसपास के इलाकों को भी कैप्चर करना शुरू करा उन्होंने। कैसे किया? द ब्रिटिश कॉन्कर्ड जावा एंड सुमात्रा फ्रॉम द डच। किससे ले लिया इन्होंने? जो यूरोपियन का और कंपनीज आई थी उनके हाथ से ब्रिटिशर्स ने जावा ले लिया और सुमात्रा लिया डच लोगों से। दे ऑल्सो ऑक्युपाइड सिंगापुर एंड Sarawak in the Malaya Peninsula. आसपास के इलाकों पे भी उनकी नजर थी। फाइन। These conquests established their naval supremacy. अब जब ये वाले इलाकों को वो लोग कॉन्कर कर रहे थे, तो जावा, सुमात्रा, सिंगापुर कैसे जा रहे थे? बाय शिप जा रहे थे, बाय एयर भी जाते थे, बाय लैंड रूट उनकी मतलब कि पैदल सेना भी जाया करती थी। लेकिन नेवल सुपरमेसी का मतलब है कि उनकी जो जहाजी बेड़ा था, समुद्री जहाजी बेड़ा था, और समुद्री जहाज से वो जो वॉर करते थे, वो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत बढ़िया थी। तो उन्होंने जावा, सुमात्रा, सिंगापुर को कॉन्कर करके ये स्टैब्लिश कर दिया कि देखो, हमारा ये नहीं कि सिर्फ लैंड एरिया में हमारी जो वॉर स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल है, नहीं, हम समुद्री इलाके से भी जा कर के, समुद्री रास्ते से जा कर के भी दूसरे कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाकर अपना दबदबा हम बना रहे हैं। तो अपनी जो है सुपरमेसी वो लोग डिक्लेयर कर रहे थे इसी तरह से। ठीक है। और जो उनका खास एक इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट था ट्रेडिंग एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो इसको, इसी चीज़ को हम कह रहे हैं एग्रेसिव पॉलिसी। ये नहीं कि शांत होकर बैठ कर के अच्छा किसी इलाके में वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भैया अपना बिजनेस करो, बिजनेस एक्सपेंशन करो। लेकिन नहीं, बिजनेस तो करना ही करना है, ट्रेडिंग करना ही करना है, उसके साथ फुल फोर्स, फुल पावर के साथ। प्यार से मान जाते हैं तो ठीक है, सब्सिडरी अलायंस दे के मान जाते हैं, साइन करके मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वॉर करेंगे। फाइन। नॉट ओनली इन द लैंड एरिया, नॉट ओनली इन इंडिया, बस इंडिया के आसपास के भी इलाकों में। दीज कॉन्क्वेस्ट्स established their naval supremacy in the region and helped them control the Southeast Asian trade. Southeast Asian trade में इस तरह से उन्होंने अपना दबदबा बनाया। ये नहीं कि वहाँ पे कॉन्क्वेस्ट कर लिया और कॉन्क्वेस्ट करके वहाँ पे अपना झंडा गाड़ा और चले आए वापस, नहीं, वहाँ पे अपने लोगों को वो बैठाया करते थे। ठीक है। और पूरी नज़र रखते थे, मिलिट्री फोर्स को वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते थे, ट्रेडिंग उनकी बहुत बढ़िया थी। ठीक है। तो ऐसे वो उन्होंने जो जिस तरह से कब्ज़ा करना शुरू करा, तो पूरे मतलब हिंदुस्तान में भी लगा कि भाई लोग डरने भी लग गए थे।
बहुत जल्दी सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर देते थे, और उनकी पैरामाउंटेसी पॉलिसी जो है वो धीरे 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 सक्सेसफुल भी हो रही थी. द किंगडम ऑफ नेपाल एंड बर्मा वर ऑल्सो डिफीटेड. नेपाल और बर्मा को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. एंड फोर्स टू cede the territories to the British. ये लोग भी इनके अंडर में आ गए. अब हम आते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका था, द ब्रिटिश एक्सटेंडेड इट इन्फ्लुएंस अप टू रिवर सतलज. रिवर सतलज तक उन्होंने अपना जो है दबदबा बहुत अच्छे तरीके से जमाया. 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी दे वर वरीड अबाउट कि वहाँ से जो है अफ़गानिस्तान वगैरह का जो इलाका है, सिंध का इलाका है नॉर्थ वेस्ट में, कहीं वहाँ से जो है ये लोग आ ना जाए. कौन लोग ना आ जाए? रशियन लोग आ जाए. अगर रशियन लोग हिंदुस्तान में आ गए तो फिर से वो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट इनका शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पर भी जो है अपना एक्सटेंशन किया. कहाँ पर? ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ वेस्ट के इलाके में भी अपना एग्रेशन दिखाया, एग्रेसिव पॉलिसी उन्होंने वहाँ पर भी दिखाई. इवन इन पंजाब ऑल्सो, पंजाब को बहुत पावरफुल प्लेस था, बहुत पावरफुल. Among the few Indian kingdoms that remained independent was Punjab. It was ruled by Maharaja Ranjit Singh. He was on friendly terms with British. He had built a very strong army, equipped and trained like European forces. जिस तरह से यूरोपियन फोर्सेस ट्रेंड थे, उसी तरह से पंजाब के जो राजा थे, रूलर थे, उन्होंने अपनी फोर्स को भी बड़ा ताकतवर बनाया हुआ था, और ब्रिटिशर्स इनसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने में डरते थे. फाइन. तो किस तरह से एक एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे थे. बाहर भी वो लोगों ने दबदबा बनाया, हमारे देश के अंदर किस तरह से सिंध के इलाके में, नॉर्थ वेस्ट के इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में लिया. और बहुत स्ट्रॉन्ग अगर इनकी आर्मी थी, तो यूरोपियन की तरह फोर्स की तरह उनको ट्रेंड भी करा हुआ था, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करें. फाइन. लेकिन फिर भी उन्होंने फुल कोशिश करी कि वो पंजाब को अपने अंडर में ले लें. Now comes the topic, the challenges during the British expansion. जब ये इस तरह के एक्सपेंशन कर रहे थे, पंजाब को भी हथियाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये नहीं था कि सभी लोग हाथ पर हाथ रख कर के बैठे हुए थे. अब पंजाब के राजा भी बहुत स्ट्रांग थे. ठीक है, इसी तरह से जो हम देखेंगे चैलेंजेस जो थे, चैलेंजेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश एक्सपेंशन का मतलब जिस तरह से वो पैरामाउंटेसी पॉलिसी के अंडर और दूसरे मतलब कि इलाकों को अपने कब्जे में ले रहते थ्रू वॉर टैक्टिक्स एंड ऑल, तो हर बंदा चुपचाप जो है सरेंडर नहीं कर रहा था. ठीक है, कुछ लोगों का चैलेंज जो है ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ा. On the screen you can see the Strait of Kittur, the Rani Channamana in 1824. When British tried to annex the small state of Kittur, प्रेजेंट का जो स्टेट है आज का कर्नाटका, ये वहीं पर है. ठीक है, और वहाँ की जो रानी थी चन्नमा, ठीक है, she took up the arms, उन्होंने तलवार उठा ली, and led an anti-British resistance movement. ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि उनके खिलाफ अपनी आर्मी को खड़ा कर दिया. ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई. लेकिन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थे ब्रिटिशर्स, फाइन, रानी चन्नमना, she was arrested in 1824 and she died in prison in 1829.
29 में उनकी डेथ हो गई। फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, स्क्रीन में EIC शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वरीड अबाउट द एंट्री ऑफ रशिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया 1830। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो काफ़ी वरीड थी रशिया को लेके, वो क्यों थी? नॉर्थ वेस्ट के जो लैंड वाला इलाका है वहाँ से जो है रशिया इंडिया में आने की कोशिश कर रहा था। ये खबर अंग्रेज़ों को थी, तो नॉर्थ वेस्ट का इलाके को उसको रोकना, वहाँ पे उनकी एंट्री बंद करना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो व्हाट ब्रिटिशर्स दे डिड, ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट एरिया। नॉर्थ वेस्ट एरिया पे उनको अपना अब दबदबा जमाना था। फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट विद अफगानिस्तान। अब यहाँ पे किससे लड़ाई लड़नी पड़ी? अगर इंडियन मैप आप देखते हैं, जो 1947 से पहले का जो हिंदुस्तान, उस टाइम का अगर आप देखेंगे तो वो सिंध वाला इलाका, नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका, वहाँ से अफ़गानिस्तानी भी हमारे कंट्री में आने की कोशिश किया करते थे, आए भी। ठीक है, तो उनसे बहुत ज़बरदस्त फाइट हुआ 1838 से लेके 1842 तक। एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी established its rule in सिंध। सिंध पे उन्होंने अपना कब्जा करा। They fought furiously with Afghanistan and captured Sindh in 1843। आप देख रहे हैं 1824, 30, 43, फटाफट फटाफट जल्दी 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 जो है ये लोग, दिस इज ए एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, कि बहुत एग्रेसिव फॉर्म में इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी। अब सिंध को जब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, तब अभी थोड़ा पंजाब के बारे में बात कर रहे थे ना, तो नेक्स्ट इन द लाइन वाज द पंजाब। सिंध के बाद उन्होंने पंजाब पे हावी होने की कोशिश करी। महाराजा रंजीत सिंह वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, he was very strong ruler and held back the company। कंपनी उनके सामने जो है वो टक्कर नहीं ले पा रही थी। उनके तौर तरीके जो थे महाराजा रंजीत सिंह के बहुत स्ट्रांग थे, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। यूरोपियन फोर्सेस जिस तरह से मतलब कि वेल ट्रेंड थी, वैसे ही उन्होंने अपने आर्मी को भी उन्होंने अच्छे से ट्रेंड किया था। अब क्या हुआ कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव, जब तक वो जिंदा थे, ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द किंगडम। उन्होंने उनके किंगडम में, उनके रूलिंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करा, क्योंकि उनको पता था कि जितनी स्ट्रॉन्ग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है, जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी आर्मी है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसी के टक्कर में जो है महाराजा रंजीत सिंह भी जो है वेल प्रिपेयर्ड थे। सो टिल ही वॉज अलाइव, nobody, nobody means the Britishers, fine, the East India Company, they did not dare to face Maharaja Ranjit Singh. But after the death of Maharaja Ranjit Singh in 1839, what happened? There was a struggle power. Struggle power का मतलब क्या? Struggle for power, पावर के लिए संघर्ष करना। Struggle for power, पावर को गेन करने के लिए, मीन्स पंजाब को गेन करने के लिए एक स्ट्रगल हुई, एक फाइट बैक हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। किसके बीच में हुआ? रंजीत सिंह की जब डेथ हुई, महाराजा रंजीत सिंह की जब डेथ हुई, तो उनके बेटे जो है वो दलीप सिंह, ही वॉज अ सक्सेसर। ठीक है, ही सक्सीडेड अ थ्रोन। अब क्योंकि एकदम से मतलब कि उनकी डेथ के बाद वो बैठे थे और उनको पूरा मौका मिला कि एक ट्रांजिशन पीरियड होता कि फादर की डेथ हुई, अभी बेटा जो है राज करने के लिए आया, तो उन्होंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। द ब्रिटिश डिफीटेड हिम एंड एनेक्स्ड पंजाब इन 1849।
In 1849, Punjab was annexed. और आसानी से दलीप सिंह भी नहीं हारे थे. Two wars were fought between Sikh and कंपनी, पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दो ज़बरदस्त वॉर हुए. एंड फाइनली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड. फाइन. तो ये जो पैरामोंटेसी पॉलिसी थी, इसका क्या मतलब हुआ? पैरामोंटेसी बहुत क्लियर कट पॉलिसी थी इनकी. किसने इनिशिएट किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको इनिशिएट करा. फाइन. और कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम. उनकी अथॉरिटी, उनकी जो पावर है, उनका रूलिंग तरीका जो है, उनकी आर्मी, ईच एंड एवरीथिंग, हर फील्ड में वो इंडियन रूलर से सुप्रीम है, इंडियन रूलर से वो बेटर है. मीन्स द कंपनी पावर वॉज more powerful than the Indian states. तो इस चीज़ को बार बार स्टैब्लिश करने के लिए वो तेज़ी से वॉर किया करते थे, एनेक्स करने के लिए, एनेक्स करने के मीन्स कैप्चर करने के लिए दूसरों की टेरिटरीज. फाइन. और वो बार बार इसलिए तेज़ी से कर रहे थे कि लोग उनसे डरना शुरू कर जाए. देखो अभी उन्होंने वहाँ पे पंजाब में करा, सिंध में करा, बंगाल कर लिया था, मराठा कर लिया था, मैसूर कर लिया था, फटाफट फटाफट हर जगह. तो लेकिन उनको जो है ऐसा नहीं था. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को, अगर वो चुपचाप एक दो स्टेट को लेकर के बैठ जाते हैं तो क्या ठीक है, ट्रेडर्स हैं, एक दो मतलब कि टेरिटरी लेकर के बैठ गए. लेकिन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट उनका क्या था? टेरिटरी एक्सपेंशन एंड डूइंग द ट्रेडिंग. सो उसको जस्टिफाई करने के लिए it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. एक पॉलिसी ऐसी मतलब कि उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि हम लोग आपको एनेक्स कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज यू पीपल आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग इट. वेरी सिंपल. और वो थ्रेट करते थे, ठीक है, डराते थे. उनके अपना एक तरीका था कि आप लोग हम लोगों से ज़्यादा कमज़ोर हो एंड यू कैन नॉट रूल प्रॉपरली, और हम मतलब कि यहाँ पर जो है ट्रेड करेंगे और टेरिटरीज़ को मतलब कि जो भी उनके अंडर है, मिलिट्री पावर को हम अच्छा करेंगे. तो इस तरह की बातें जो है उन्होंने करी. एंड एट लास्ट जो है उनको चैलेंज भी जो है वो स्वीकार करना पड़ा. बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आए. रानी चन्नामन्ना का हमने आपको एग्जाम्पल दिया. फाइन. और पंजाब में भी उनको एक चैलेंज को फेस करना पड़ा. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिसी एंड द चैलेंजेस ऑफ पैरामोंटेसी. फाइन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.